Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today we'll start with new chapter that is photosynthesis. देखो photosynthesis, we can divide this word photosynthesis into two parts. The word photo, it means light. Photo means light, and synthesis, it means formation. Synthesis means formation. So the photosynthesis itself means formation of food with the help of light. ठीक है, formation with the help of light. तो देखो photosynthesis is the process by which green plants manufacture carbohydrate from atmospheric carbon dioxide and water from the soil in the presence of sunlight. यानी photosynthesis में क्या हो रहा है? Food is manufactured with the help of carbon dioxide and water. Water is obtained from the soil. Plants absorb water from the soil and this water is used in the process of photosynthesis. Carbon dioxide enters from the atmosphere. ठीक है, तो photosynthesis. Now अब हम देखते हैं what are the materials required in photosynthesis. The important materials that are required in photosynthesis are carbon dioxide, water, solar energy and chloroplast. What are chloroplasts? Chloroplasts are the green plastids that are found in green parts of plant. Chloroplasts are the green plastids, है ना? Chloroplasts are the green plastids that are found in green parts of plant. And solar energy, it is obtained from sunlight. It is obtained from the sun. Solar energy. Carbon dioxide is obtained from atmosphere. It enters the leaf through stomata. Water is absorbed by the roots. ठीक है, चलो मटेरियल रिक्वायर्ड. अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. It has two membranes. This is the outer membrane and this is the inner membrane. This inner membrane is selectively permeable. Outer membrane, inner membrane. Now see the structure. It contains two major structure. Main structure, that is, this is granum. It is made of thylakoids. This single coin-like structure, this is thylakoids. Thylakoids are placed one above the other, and this forms the granum. This is granum. Light reaction takes place in grana, and this is stroma. This colorless, what is stroma? ठीक है, this is grana and this is stroma. This is thylakoid, this is lumen. ठीक है, stroma, this colorless fluid, this is stroma. ठीक है, dark reaction takes place in stroma and light reaction takes place in grana. This is structure of chloroplast. Now we'll see the opening and closing of stomata. The opening and closing of stomata, there are two theories for this. One is sugar concentration theory and the next is potassium ion theory. So sugar concentration theory, it shows that when photosynthesis takes place, the sugar is formed in these guard cells. Stomata, it is made up of two kidney shaped guard cells. These are the two kidney shaped guard cells. Sugar is present in this. When the sugar concentration in these guard cells increases, so the concentration is more inside the guard cells, so the surrounding solution has lower concentration, it becomes hypotonic. So when a cell is placed in hypotonic, endosmosis takes place. So water from the surrounding enters the guard cells and it gets swollen. And as it gets swollen, so this stomata opens up. ठीक है. And now during the night time, when the concentration of sugar in the guard cell decreases, so the concentration is less in the guard cell and in the surrounding the concentration is more. So at this time exosmosis takes place. As exosmosis takes place, so the guard cells shrink and this stomata, it gets closed, and the stomata gets closed. This is sugar concentration theory. Now next is potassium ion concentration theory.
In this potassium ion concentration theory, what happens is that potassium ion, it regulates the opening and closing of stomata during daytime when photosynthesis takes place, and in the process of photosynthesis ATPs are produced, and as ATP is produced, then this ATP, what ATP do, ATP pump this potassium ion from the surrounding cells inside the guard cells. This ATP, it actively pumps the potassium ion from the surrounding cells into the guard cells. So potassium ion enters the guard cells. Potassium ion enters the guard cells, and as the concentration of potassium ion inside the guard cells increases, as the concentration of potassium ion in the guard cell increases, so the concentration of potassium ion is more, so the surrounding solution has lower concentration, and so endosmosis takes place. Water from the surrounding solution enters the guard cells, and guard cells become turgid, so the stomata opens up, and during the night time the potassium ion move out of the cell, so the concentration decreases and it leads to exosmosis, so the guard cells become flaccid and the stomata gets closed. This is how stomata open and close. Okay. Now we'll see the mechanism of photosynthesis. What happens in photosynthesis? Mainly two processes takes place in photosynthesis, that is light reaction and dark reaction. We'll study these two reactions in detail. Light reaction, it takes place in grana. Dark reaction, it takes place in stroma. ये याद रखना है. Light reaction takes place in grana. Dark reaction takes place in stroma. ठीक है. ये देखो what happens in photosynthesis. Water is raw material. Water is material required. It is absorbed from the root. Light, it is obtained from sunlight. Carbon dioxide. Carbon dioxide enters the stomata of the leaf when the stomata gets open. And what are the end products? Oxygen. Oxygen is given into the air, and starch. Starch is formed. Starch, stored food. What is starch? Stored food in other parts of the plant. ठीक है. चलो अब हम ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन डिटेल में करेंगे. व्हाट हैपेंस इन लाइट रिएक्शन? Light reaction. Light reaction is also called as photochemical reaction or Hill reaction. As a scientist, Hill discovered it. Light reaction is called Hill reaction. As a scientist, Hill discovered it. As light is used in this reaction, so it is also called as photochemical reaction. It takes place in grana or thylakoid of chloroplast. Dark reaction takes place in stroma of chloroplast. Light reaction takes place in grana of chloroplast. Now what happens in light reaction? First, absorption of light energy by chlorophyll takes place. Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll, this chlorophyll molecule, it contains chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. Chlorophyll, it contains chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. Chlorophyll, it is light sensitive pigment. Chlorophyll is light sensitive pigment. It absorbs the photons of light. In light, photons are present, and this chlorophyll, it absorbs this photon of light, and this chlorophyll gets excited or activated. Chlorophyll absorbs the photons of light and it gets excited or activated. ठीक है. यानी कि अब फिर क्या होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो थे, जो लो एनर्जी स्टेट में थे, वो एक्साइटेड हो गए, हाई एनर्जी स्टेट में चले गए. ठीक है. और इससे क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में आने से दे रिलीज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड स्टेट में आने की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो क्लोरोफिल ए है, इट रिलीजेज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय it releases one pair of electron. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर.
फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इस फोटोलाइसिस को हम ब्रेक करें तो फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। दैट मीन्स वाटर को तोड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, दिस वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O, इट गेट्स ब्रेकन इनटू 2H plus O plus 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इट गेट्स रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और जो हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन है वो किस में यूज़ हो जाते हैं, दे आर यूज्ड इन दिस रिडक्शन ऑफ NADP। यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या हुआ है, वाटर ब्रेक हुआ है, H2O मॉलिक्यूल इट गेट्स ब्रोकन, it breaks to form 2H plus ion and 2 electron, और ये दोनों यूज़ हो रहे हैं NADP को रेड्यूस करने के लिए। यानी ये जो NADP है ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन फोटोलाइसिस से ब्रेक हुए हैं वो इसे यूज़ करेंगे और NADPH2 फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, NADPH2 यानी NADPH2 फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, NADPH2 फॉर्म हुआ। देन देर इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP। फॉस्फोराइलेशन यानी क्या होता है, फॉस्फेट का ऐड होना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड होना। तो ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होगा ADP प्लस P, इट विल फॉर्म ATP। दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग लाइट एनर्जी इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ आया? देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, NADPH2, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ATP। यानी लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में ATP और NADPH2 ये दो फॉर्म हो रहे हैं। ATP और NADPH2 ये दो फॉर्म हो रहे हैं, और ये दोनों कहाँ पर यूज़ होंगे, ATP और NADPH2 ये दोनों यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में। इसके बाद डार्क रिएक्शन, उसमें डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना। अब इसमें क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में यूज़ हो जाते हैं, वो NADP को रेड्यूस करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, वाटर से क्या रिलीज़ होता है, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, वो NADP को रेड्यूस करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और NADP रेड्यूस होके क्या फॉर्म हो जाएगा, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2H प्लस, इट विल फॉर्म NADPH2, और यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP इज फॉर्म। और ये जो ATP और NADPH2 जो फॉर्म हुए हैं ये दोनों किस काम आएंगे, ये दोनों डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। ठीक है, चलो अब हम डार्क रिएक्शन करते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। क्यों इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो किसने स्टडी किए थे, मेल्विन केल्विन ने स्टडी किए थे। ये रिएक्शंस मेल्विन केल्विन ने स्टडी किए थे, इसलिए डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन, इस सभी रिएक्शंस में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो ये 3 कार्बन प्रोडक्ट PGA, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ था। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था वो ये था फॉस्फोग्लिसरेट, दैट इज़ PGA। ठीक है, PGA फॉस्फोग्लिसरेट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट वाज फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन, इसीलिए इसे C3 साइकिल, केल्विन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या होता है,
तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, दैट इज़ सबसे पहले 3 स्टेप्स, वो 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ शुगर, थर्ड इज़ रीजनरेशन ऑफ RuBP। ठीक है, 3 क्या है? सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP। चलो देखो, सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। तो देखो ये समझना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड है और दिस इज़ रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ये जो रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट है, दिस इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ है। ठीक है, CO2, दिस इज़ 1 कार्बन कंपाउंड। देखो ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 1 कार्बन कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड बनेगा ये दोनों मिल के वो 6 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। बट क्या मिल के बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट दैट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट दोनों मिलके कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। समझना, तो देखो 3 मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स जब हमने यूज़ किए तो कितने बन जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, डबल है ना, 3 मॉलिक्यूल्स के डबल बनेंगे, दैट इज़ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बन गए? फॉस्फोग्लिसरेट। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, और ये सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहते हैं। समझ आया इतना? देखो अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या करेगा? ये फॉर्म हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। इट विल फॉर्म, देखो फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें एक फॉस्फेट है, राइट, इधर 1,3 आएगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगा कहाँ से? जो ATP लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए थे, पता है ना, ATP और NADPH2 मॉलिक्यूल्स लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए थे और उन्हें हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें फॉस्फेट चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वो ब्रेक हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये बन जाएगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब ये जो बाइफॉस्फोग्लिसरेट है इससे ये बन जाएगा स्टेप 2 में ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट। तो ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट के लिए क्या होना होगा? रिडक्शन करना होगा इसका, रिडक्शन। तो हमारे पास रिडक्शन कौन करेगा? NADPH जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, इट विल हेल्प इन दिस रिडक्शन प्रोसेस। NADPH, it will help in this reduction process of 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो जो 6 मॉलिक्यूल्स है, राइट, इसीलिए 6 NADPH यूज़ होंगे, तो 6 NADPH इट विल कन्वर्ट टू NADP प्लस, और ये रेड्यूस होके ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, ग्लिसराल्डिहाइड। अब इस ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट से शुगर्स फॉर्म हो जाएंगे, अपना ग्लूकोज एंड शुगर्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, शुगर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो और जो बाकी का जो होगा वो क्या करेगा? वो वापस से रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट फॉर्म, थर्ड स्टेप क्या था? देखो, फर्स्ट स्टेप तो था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्स हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ शुगर हो गया, शुगर फॉर्म हो गया, राइट, शुगर फॉर्म हो गया। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा? रीजनरेशन ऑफ RuBP। तो ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट वो वापस से रीजनरेट करना है, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट वापस से रीजनरेशन में यूज़ होना है, तो इसके लिए उसे वापस से ATPs की ज़रूरत पड़ेगी। फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दिस इज़ बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ना, और यहाँ पर 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए उसे वापस से फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो ATP इट विल गेट ब्रोकन टू ADP मॉलिक्यूल्स, और
ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, इट विल अगेन फॉर्म रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, और फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज डार्क रिएक्शन. ठीक है, चलो. अडेप्टेशंस इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. कुछ प्लांट्स में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल क्या है उसके लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे कर पाएगी. सबसे पहली अडेप्टेशन है थिननेस ऑफ लीव्स. यू नो, रीज़न पूछ सकते हैं आपको, वाई लीव्स आर थिन, तो आप क्या लिखोगे, वाई लीव्स आर थिन. तो लीव्स पतले इसलिए होते हैं ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजीली हो सके. ठीक है, वाई लीव्स आर थिन सो दैट गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. लीव्स आर थिन सो दैट गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज इन एंड आउट. ठीक है, सबसे पहला अडेप्टेशन थिननेस ऑफ लीव. सेकेंड इज लार्ज सरफेस एरिया. तो देखो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन, है ना. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन, इसलिए लार्ज सरफेस एरिया. थर्ड इज़ रिच नेटवर्क ऑफ जाइलम फाइबर्स. तो जाइलम का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. तो जितना अच्छा नेटवर्क उतना अच्छा वाटर, उतनी अच्छी वाटर सप्लाई, उतना अच्छा वाटर की डिलीवरी, वाटर और मिनरल्स की डिलीवरी उतनी अच्छी. ठीक है, इसीलिए रिच नेटवर्क ऑफ जाइलम फाइबर्स. देन न्यूमरस स्टोमेटा. अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो पाएगा, नहीं. इसीलिए स्टोमेटा ओपन होना इम्पॉर्टेंट है, ओपन स्टोमेटा इम्पॉर्टेंट है. तो न्यूमरस स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड क्लोज एट नाइट टू रेड्यूस वाटर लॉस. ठीक है, चलो. फिर क्या है, थिन लेयर ऑफ वैक्स. और थिन लेयर ऑफ वैक्स, हाँ, वो क्या करता है, इट रेड्यूसेस द इवापोरेशन फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ लीफ. देन हाँ, कि क्लोरोप्लास्ट, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ. ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो डायरेक्ट अपर सरफेस पर ही आने वाली है ना, इसीलिए द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ. ठीक है, दीज आर द adaptations in plant for photosynthesis. Now factors affecting photosynthesis, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर.